Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography, our environment. Class 7th. Okay, students, today we have to start from chapter number 6, natural vegetation and wildlife. Okay, natural vegetation and wildlife. And students, we have to start from page number 43. Okay, page number 43, and this is video third. All right, video third. So let's start, students. Okay, you have learned that many types of forest like temperate deciduous forest, Mediterranean forest, okay, and tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest. Now we will read coniferous forest. Okay students, तो आज हम पढ़ेंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट. जैसे नाम से ही क्लियर है, कोन यानी शंकु. ओके, सो कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन. ओके, in the higher latitudes 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found 6.13 A and B. These are also called as taiga. Okay, these are also called as taiga. These forests are also seen in the higher altitudes. Okay, these forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood evergreen trees. The wood of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Match boxes and packing boxes are also made from softwood. Chair, pine, cedar are the important variety of trees in these forests. Silver fox, mink, polar bear and are the common animals found here. Okay, so students, we will read about coniferous forest in Hindi, Sankudhari 1. Okay, so in the higher latitudes 50 degree to 70 degree of northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found 6.13 A and B. We can say 6.3 A and 6.3 B. Okay, we can see here a coniferous forest and snow covered coniferous forest. ठीक है. सो उत्तरी गोलार्ध के स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध. उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, हाई लैटिट्यूड्स, उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं. स्पेक्टेकुलर कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड. ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा, और इन शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है. These forests are also seen in the higher altitudes. और ये जो वन हैं ये उच्च ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं. मीन्स अधिक ऊंचाइयों पर भी ये वन पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, these are the trees which Salima found in the Himalayas in एबिंडेंस. और ये वही वन हैं जो कि सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में जिनको देखा था. इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में एबिंडेंस मीन्स बहुत अधिक मात्रा में देखा था. दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज. ओके, ये टॉल यानी लंबे, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्री. ओके, मुलायम लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं. ठीक है, ये पेड़ कैसे होते हैं? एक तो लंबे होते हैं और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन सदाबहार, सॉफ्टवुड नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष ये होते हैं. ओके, the woods of these forests are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Okay, इन वृक्षों के जो लकड़ियाँ होती हैं, इन पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग लुगदी बनाने में, पल्प मीन्स बोलते हैं लुगदी. ठीक है, लुगदी बनाने में किया जाता है, या गूदा, जो गूदा भी बोलते हैं पल्प. ठीक है, लुगदी या गूदा बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है कागज़ और न्यूज़ प्रिंट यानी अखबारी
कागज और सामान्य कागज बनाने के काम में ये आती हैं। तो किन वृक्षों के हिमालय में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले लंबे नरम मुलायम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष की जो लकड़ियाँ होती हैं, इनका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है और लुगदी से सामान्य तथा अखबार बनाने वाले कागज काम में आते हैं, मीन्स अखबारी कागज बनाने के ये काम में आते हैं। ओके, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। और मैच बॉक्सेस यानी माचिस के डिब्बे, ठीक है, माचिस के डिब्बे और पैकिंग के जो डिब्बे होते हैं, पैकिंग के लिए जो बक्से बनाते हैं, वे भी इस नरम लकड़ी सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट के पेड़ों से बनाए जाते हैं। ओके, चीड़, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. Okay, चीड़, पाइन, देवदार, ओके, चीड़, पाइन, सीडर, चीड़ और देवदार, ठीक है, चीड़, सागौन एंड देवदार आदि के बहुत महत्वपूर्ण पेड़ इन वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। और यहाँ पर सामान्यतया स्टूडेंट्स लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे थे शंकुधारी वनों के बारे में। तो स्टूडेंट, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों हाई एल्टीट्यूड में शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन वनों को टैगा भी कहा जाता है, TAIGA, ओके, इन वनों को टैगा भी कहा जाता है। और ये वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, एबेंडेंस देखा था। ये लंबे नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम में आता है। नरम लकड़ी का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं और यहाँ सामान्यतया लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रासलैंड्स, ठीक है। ग्रासलैंड मीन्स घास स्थल, ग्रासलैंड मीन्स घास स्थल। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास की भूमि, ठीक है, घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ओके, these occur on either side of the equator and extend till the tropics. Figure 6.14, you can see here tropical grassland. Okay, this vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height. Savanna grassland of Africa are of this type. Elephants, zebras, giraffe, deer, leopard are common in tropical grassland. ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स घास स्थल के बारे में, जिसमें कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हम पहले देखते हैं। यू कैन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पिक्चर्स हेयर इन 6.14 फिगर। ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ओके, these occur on either side of the equator and extend till the tropics. ओके, अब ये जो हैं अक्सर भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। these occur on either side of the equator, ठीक है, ये भूमध्य रेखा के किसी भी ओर को उगते हैं and extend till the tropics, ठीक है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैल जाते हैं, ठीक है। फिगर 6.14, you can see this vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall. यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, moderate to low amount, ओके, निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है यहाँ की वनस्पति। The grass can grow very tall, घास बहुत लंबी उगती है, ठीक है, घास की लंबाई जो होती है काफ़ी होती है, 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक इसकी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है, इस घास की। सावना, ओके,
सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। सवाना घास के मैदान अफ्रीका के इसके उदाहरण हैं, किसके? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के। एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, सामान्य रूप से स्टूडेंट्स उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल रीड अबाउट डू यू नो, क्या आप जानते हैं? टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। ओके, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ओके, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या है? शुद्ध या अनछुआ। ओके, सो नाउ लेट्स डू, चलिए करते हैं। Look around in your surroundings and find out the articles made of hardwood and soft wood. Okay, अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी हुई, मतलब मजबूत लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। ओके, फाइंड आउट एंड लर्न द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज ऑफ योर लोकेलिटी। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आजकल आप घर पर हैं, तो अगर कभी इधर उधर जाते हैं या फिर अपने आसपास जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसके नाम आप अपने पेरेंट्स से या अपने घर के एल्डर से पता करिए, और अपने आसपास जो नरम लकड़ी से और कठोर लकड़ी से बनी वस्तुओं पर भी ध्यान दीजिए। ओके, तो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स ग्रासलैंड के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो कि होता है उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास स्थल हमने पढ़ा। अब हम दूसरा घास स्थल पढ़ेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, शीतोष्ण घास के मैदान। ओके, या शीतोष्ण घास स्थल। ऑलराइट, so let's read students. These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate region. Okay, अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। These are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents. तो ये स्टूडेंट्स जो शीतोष्ण घास स्थल हैं ये मध्य अक्षांश, मिड लैटिट्यूड जोन्स, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। ओके, सामान्यतया यहाँ की जो घास होती है वह छोटी और न्यूट्रिशियस यानी बहुत पौष्टिक होती है। ओके, वाइल्ड यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतया वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। टेम्परेट ग्रासलैंड मीन्स होता है स्टूडेंट शीतोष्ण घास का मैदान या शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास स्टूडेंट्स आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड, थॉर्नी बुसेस। थॉर्नी मीन्स होती है कटीली एंड बुसेस मीन्स झाड़ियाँ। तो हम पढ़ेंगे कटीली झाड़ियों के बारे में। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। Tropical desert are located on the western margins of the continents. The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. Okay, scanty rain and scorching heat. Identify the desert regions in the world map. Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learnt earlier. Okay, so students, we will read about thorny bushes. Thorny means कटीली, bushes means झाड़ियाँ। Okay, और जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि थॉर्नी bushes कहाँ पर मिलते हैं? शुष्क रेगिस्तानों में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते
पढ़ते हैं. These are found in the dry desert like regional, okay, like regions. Tropical deserts are located in on the western margins of the continents. The vegetation cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. Identify the desert regions in the world map. Can you name the Great Desert of India? Name some of the common animals of the desert which you have learnt earlier. Okay. Thorny bushes, these are found in the dry desert like regions. ठीक है. शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं. ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो स्टूडेंट, जो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, वेस्टर्न मार्जिन पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं. ओके, या पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं. द वेजिटेशन कवर इज स्केर्स हेयर, ओके, बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट. और जो यहाँ की वनस्पति है, तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की जो वनस्पति होती है वो स्केयर हेयर बहुत कम होती है. आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप. विश्व के मानचित्र में मरुस्थल के क्षेत्रों को, रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करिए. कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर. ओके, तो रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं. ओके. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. The growth of natural vegetation is very limited here. Only mosses, lichens, and very small shrubs are found here. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia, and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions. Seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear, and snow foxes are some of the animals found here. Okay, if you reach the polar region, you will find the place extremely cold. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो साउथ पोल है चाहे वो नॉर्थ पोल है, बहुत अधिक ठंडे होते हैं. ठीक है, तो यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में पहुंचते हैं या जाते हैं, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर. और यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है. ओनली मॉसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर. यहाँ पर केवल मॉसेस मीन्स काई, ठीक है, मॉसेस मीन्स काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं. इट ग्रोस ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. ओके, और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है. दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है. दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप. और ऐसी यह वनस्पति यूरोप के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है. ठीक है, ये वनस्पतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? यूरोप के, एशिया के और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं. द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, और ये जो जानवर हैं स्टूडेंट्स, यहाँ के जानवरों के शरीर पर बहुत अधिक मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है. थिक फर एंड थिक स्किन ये होता है बिकॉज फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि ये इससे अपने को प्रोटेक्ट कर सकें. मीन्स कि जो जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है तो वे उसे ठंडी जलवायु में प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है. ओके, सील, walruses, musk oxen, Arctic owl,
polar bear and snow foxes are some of the animals found here. Okay, और यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं स्टूडेंट, जैसे सील है, वॉलरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। आप देख सकते हैं 6.16 में सील, वॉलरस, पोलर बियर का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा लगेगा। ठीक है, और यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ओके, और यहाँ केवल लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ और काई मिलती है। ठीक है, ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है, और ये वनस्पतियां स्टूडेंट्स यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। और यहाँ के जानवरों के शरीर पर स्टूडेंट्स आप अक्सर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी देखेंगे, क्योंकि ये मोटा फर और मोटी चमड़ी उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले, ठीक है, यहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो होते हैं सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ओके, now next, Salima's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlements, so they cleared up the forest. Salima started wondering, if all forests are cleared, then where will the wildlife go? Will the forest take its original shape again? If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber fruits, nuts available in future? Okay, Salima's father showed her some photographs of thick forest. Okay, सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। Okay, in some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Okay, और जो in some of the photographs, okay, और कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। ठीक है, सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लीनिंग द फॉरेस्ट। तो सलीमा ने देखा कि लोग वहाँ के जंगलों को काट कर साफ कर रहे हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट को साफ करके उस जगह को क्या कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वॉन्टेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। ओके, तो वे कहती हैं, उनके सलीमा के पिता ने बताया कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो खेती के लिए और घर बनाने के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को काटकर साफ कर दिया है। ओके, सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग, ओके, सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। तो सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को काट दिया गया, साफ कर दिया गया, तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। ओके, विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, और क्या फिर से ये वन पुनः ऐसे ही बन पाएंगे, अपने पुरानी इस आकार में आएंगे। If people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? और वे सोचती हैं कि अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि क्या मिल पाएंगे। ओके, डू यू एग्री विथ सलीमा? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? ओके, hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna, suggest some measures to conserve them. Okay students, so do you agree with Salima? Exactly, we agree with Salima. Okay, हम सलीमा से 100% सहमत हैं। Okay, so hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Okay students, अपने दोस्तों के साथ वनस्पति और, ठीक है, वनस्पति और वन्य जीव प्राणी जगत की विविधता में
हो रही कमी पर डिस्कस करिए, चर्चा करिए और स्टूडेंट्स सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व दैम, ओके, और इनके संरक्षण के बारे में सुझाव दें। तो जब सलीमा के पिता और सलीमा डिस्कस कर रहे थे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, वनों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में, तो सलीमा के पिता ने कुछ घने वनों के चित्र दिखाए और कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो सलीमा के पिता ने बताया कि जो स्थानीय लोग होते हैं वे कृषि के लिए और घर बनाने के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। ठीक है, अब सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, नट्स, मेवे आदि कहाँ मिल पाएंगे? तो स्टूडेंट्स, क्या आप भी सलीमा से सहमत हैं? यस, हम सब सलीमा से सहमत हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वनों का, वन्य जीवन का संरक्षण करें। ओके, हम पेड़ों को काटने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और वनस्पति उगाएं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर डू यू नो, क्या आप जानते हैं ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ओके, ग्रास स्थल, ठीक है, घास स्थल विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जो घास के मैदान हैं उन्हें विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जस्ट लाइक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में, तो पूर्वी अफ्रीका में उसे सावना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोस कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। ओके, वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? वेनेजुएला में लानोस। ओके, अब अगर हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड का, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को, तो अर्जेंटीना में स्टूडेंट्स पैम्पास कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है, और सेंट्रल एशिया में इसे कहा जाता है स्टैपी, एंड ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है डॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको लर्न करिए कि हमारे विश्व में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के घास के मैदानों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदान को, घास स्थल को सवाना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुएला लानोस, अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टैपी एंड ऑस्ट्रेलिया डॉन। तो इन नामों से घास स्थलों को जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्स आप नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर, tomorrow I will be back with new chapter. So students, till then, take care, bye bye, have a nice day, thank you.